नमस्कार, स्वागत है सदन दिन भर में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। बांग्लादेश में जारी घटनाक्रम पर आज संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से बयान। इसके अलावा लोकसभा में वित्त विधेयक और राज्यसभा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा। अगले आधा घंटे में देखेंगे दोनों सदनों में आज और क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर भारत की पैनी नजर। संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता, कहा राजनयिक मिशन के लिए जरिए 19,000 भारतीय नागरिकों से बराबर संपर्क। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पर चर्चा। सत्ता पक्ष ने कहा सरकार आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए कर रही है काम। एंजल टैक्स खत्म करने से रोजगार और स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा। विपक्ष ने लगाया गरीबों पर बोझ बढ़ाने और अमीरों को राहत देने का आरोप। राज्यसभा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया जवाब। कहा 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद। विपक्ष ने की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की सब्सिडी बढ़ाने की मांग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर निरंतर नजर बनाए हुए है और जब तक वहां कानून व्यवस्था कायम नहीं हो जाती है, भारत की गहरी चिंता बनी रहेगी। विदेश मंत्री ने हाल में बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम पर संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी निगाह बनाए हुए है। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों को बांग्लादेश की जटिल स्थिति को देखते हुए असाधारण रूप से चौकस रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत पिछले 24 घंटों से ढाका में अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। हमारी अपेक्षा है कि मेजबान सरकार इन प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक सुरक्षा संरक्षण प्रदान करेगी। विदेश मंत्री ने कहा कि खास तौर से चिंता की बात यह है कि अल्पसंख्यकों, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और मंदिरों पर भी कई जगह हमले हुए हैं। Mr. Chairman, sir, I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew.
Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have Assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna, and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. और सदन दिन भर में खबरें फिलहाल लोकसभा से। लोकसभा ने 6 अगस्त और 8 अगस्त 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु बम विस्फोट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें हजारों लोग मारे गए और घायल हुए थे। माननीय सदस्यगण, आज से 79 वर्ष पूर्व दिनांक 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा लाखों लोग घायल हुए थे या जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार मानवता का परमाणु बम की विवशता से परिचय कराया था। इस घटना के इतने वर्षों बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी परमाणु विकिरण के खतरनाक दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। आज अवसर है कि हम विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराएं। ये सभा परमाणु हथियारों को समाप्त करने और वैश्विक शांति, सद्भावना और मैत्री की भावना के प्रसार के लिए सामूहिक रूप से संकल्प लेती है। अब ये सभा जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित व्यक्तियों की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को याद दिलाया कि संसद के किसी भी प्रवेश द्वार पर कोई प्रदर्शन नहीं करने की पूर्व में बनी आम सहमति का पालन करें। सभी दलों से
चर्चा करने के उपरांत ये सहमति बनी थी कि संसद भवन के किसी द्वार पर धरना और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। संसद भवन के अवरोध होने के कारण कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में मुझे लिखकर सामूहिक रूप से दिया था कि रास्ता रोकने से उनको असुविधा होती है। विशेष रूप से महिला सांसदों ने भी अलग से मुझे पत्र दिया था और ये निर्णय भी हुआ था कि हम किसी भी द्वार पर प्रदर्शन धरना नहीं करेंगे जिससे माननीय सदस्यों को आने जाने में अवरोधक हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके किए हुए निर्णय पर हम सब क्रियान्वित करें और जो निर्णय और फैसले हो जाते हैं उन निर्णय और फैसलों पर अगर निर्णय फैसले करते हैं उसको लागू करने में सामूहिक सहमति बने। माननीय सदस्य, नहीं, मैं खुद आज वहां पे गया था, ये उचित नहीं है और इस बारे में आप सबसे सहमति बन चुकी थी, इसलिए जब सहमति बन गई हो तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी भी सबकी है। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 पर चर्चा की गई। ये विधेयक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों से जुड़ा है। सदन के कई सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। आप लंदन जाइए, आप न्यूयॉर्क जाइए, आप वाशिंगटन जाइए, आप पूरे यूरोप जाइए, सारे दुकान बंद होते हुए नजर आएंगे। बेरोजगारी की भयंकर सीमा है। इन्फ्लेशन का रेट यदि आप कहेंगे, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां की 8% से कम इन्फ्लेशन है। पूरी स्थिति खराब है, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट का हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ का हो, फिस्कल डेफिसिट का हो, जिस भी पैमाने पर आप पूरी दुनिया को आंकने का काम करेंगे, आपको लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी की नीतियां इस देश के लिए इतनी सक्सेसफुल हैं कि आज भी भारत आशा की किरण है। पूरी दुनिया में 7% से ऊपर जीडीपी इसका ग्रोथ। Having the capital expenditure of 11 lakhs or 11.5 lakhs is one thing, but actually spending it on the ground is a different thing. So I hope the finance minister will look into it. And the second point being, ma'am, with respect to a lot of members have raised this point with regards to the reduction of long-term capital gain tax from 20% to 12%, ma'am. And they also mentioned about the indexation. A lot of members have been mentioned about this, ma'am. And there's a lot of talk also outside. So I hope and I expect the finance minister to look into it, so that because this is hard taxpayers' money, ma'am. Also, middle class people are being affected on this, ma'am. So I think there should be a relook at this indexation, so that middle class people, because they think real estate is one thing that they can safely invest in. So we feel it should be protected. I hope the finance minister will listen to this. जीएसटी के बारे में बहुत कुछ बात हुआ है. You have to just, the people who introduced the GST bill are disowning it now. अपने बच्चे को disown कर रहे हैं. क्यों? You are on the other side of the fence. If you look into the figures, the growth of taxes through GST, pre-GST regime, if you take for the 5 years from 2012 to 2017, it was 38 lakhs 52,000. Total 38 lakhs 52,000. But the last 5 years of GST, I'm not talking 22 and 24, but 2017 to 22, it is 57.5 lakhs. This is the growth of taxation. The tax base has increased. The number of people are involved in the businesses are more into the tax net. This is the revenue to the country. Once the revenue comes, then we can talk about the development, madam. लोकसभा में आज शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व से संबंधित कई मुद्दे उठाए और सरकार की ओर से इस पर ध्यान देने की मांग की।
केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में सीमित संसाधनों और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति से देश को बचाने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाई जाए। मेरे असम नॉर्थ ईस्ट भी इससे अछूता नहीं है। असम का जनसंख्या करीब 40% तक पहुंच गए हैं अध्यक्ष महोदय। इसीलिए असम पूरे पूर्वोत्तर बिहार बंगाल पूरे नॉर्थ ईस्ट बिहार बंगाल के साथ इस समस्याओं से काफी दिनों से जूझते आ रहा है। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो पूरे पूर्वोत्तर भारत से अलग होने का मांग जो उनका जिन्ना का था, हंस के लिया हिंदुस्तान लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये जो उनका जो एक पुराने जो उनका एक पौन है प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा को सफल कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय इस विषय के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष नीति अपनाएं। We still haven't done enough into investment into cancer screening. As a trustee in this cancer hospital called Basavatarkam, we do cancer screening through a mobile cancer screening bus. But the challenges with that are we aren't able to reach remote areas, and there is also a social stigma in women to come and get checked for breast cancer or other. So one thing that's been developing over the last decade in particular has been blood-based cancer tests, which today have come to be about as costly or slightly cheaper than mammography that is done in a traditional hospital, with about 1,500 rupees. So these blood-based tests, as they are becoming better and cheaper, I think we can scale it up and take our national mission for cancer screening from 1 to 2% to maybe 10-20% in the coming years. And I think the central government needs to give a message overall to do that. And I think the last part is what is causing cancer? Is it microplastics? Is it lifestyle? I think funding research on what is causing this increase in incidence in cancer is going to be very important for the country. प्राचीन काल से ही वेद वेदांग शास्त्र अध्ययन में अनिवार्य रूप से संस्कृत भाषा का महत्व रहा है। संस्कृत को विश्व की सबसे पुरातन भाषाओं में से एक माना जाता है। वैदिक काल में संस्कृत एक अखिल भारतीय वैज्ञानिक भाषा हुआ करती थी और देश में अधिकांश भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। यह भाषा किसी न किसी तरह से आधुनिक व्युत्पत्तियों और क्षेत्रीय बोलियों के कारण अपना अस्तित्व खोती जा रही है। अतः सभापति महोदया, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों का पुनर्मुद्रण कर भारतीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी, आयुर्वेद संस्थानों, आधुनिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संस्कृत शिक्षण केंद्रों की स्थापना कर एवं उच्च गुणवत्ता युक्त आयुर्वेद विद्वान तैयार करने हेतु आयुष पाठ्यक्रमों की परीक्षा संस्कृत भाषा में वरीयता देकर के अनुग्रहित करें। और सदन दिन भर में अब खबरें राज्यसभा से। राज्यसभा में आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा हुई। विभिन्न दलों के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लेते हुए अपने विचार और सुझाव रखे। सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने कहा कि भारत सबसे बड़े सौर उत्पादकों में से एक है और अब इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है। जीवाश्म ईंधन की जगह अक्षय ऊर्जा को विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है। छत पर सौर पैनल लगाए जाने वाली प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि इससे बिजली का बिल तो कम होगा ही, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की नीतियों से देश में सौर मॉड्यूल विनिर्माण में 26% की वृद्धि हुई है। वहीं विपक्ष ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में सब्सिडी बढ़ाए जाने की मांग की। Further discussion on the working of the Ministry of New and Renewable Energy. On 5th August 2024, Shri Amarpal Mourya had not concluded his speech while participating in the discussion. I now call upon Shri Amarpal Mourya to continue his speech. Shri Amarpal Mourya. मोदी जी ने एक छोटा आंदोलन एलईडी बल्ब के लिए चलाया था और वो आंदोलन इतना परिणामकारी सिद्ध हुआ। उसका परिणाम ये निकला कि करोड़ों परिवारों को एलईडी बल्ब देने की जब योजना चली, उस एलईडी बल्ब के माध्यम से 45 बिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत हुई। ये है नरेंद्र मोदी सरकार की दृष्टि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2024-25 में ऊर्जा सुरक्षा को सरकार के 9 प्राथमिकताओं में से एक बताया।
यह नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प के रास्ते में जीवन के हर छोटी बड़ी चीज़ों के विकास के लिए चिंता की है, वो अपने आप में बहुत अहम है। अब तक 69,665 से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध कराए गए। उससे न केवल खेती की लागत में कमी आएगी और बल्कि जलवायु परिवर्तन के लिहाज से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आ रही है। यूपी सरकार ने वर्ष 2024 और 25 में 53,250 और किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल पिछले 10 सालों में 396% बढ़ी है तथा ये 203.19 गीगावाट है, जो भारत की पूरी कैपेसिटी का 45.5% है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम 748 गीगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य कर रहे हैं तथा हम पिछले 10 साल में 30 गुना बढ़े हैं। विंड पावर में भी विश्व में हम चौथे नंबर पे हैं और हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 46.65 गीगावाट है। Finance Minister has given equal importance to the renewable energy, and at her budget proposal, 19,100 crore proposed for the renewable energy sector. Which compare with the UPL government, this hike is more than 100%. जो नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि पार्सल की मुकदमेबाजी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने और निष्पादन में तेजी लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर यह बजट देश और दुनिया को आश्वस्त करता है कि भारत के शुद्ध, शून्य और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में नवीनीकरण में ऊर्जा क्षेत्र पर भारत निरंतर जोर दे रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने चर्चा का जवाब देते हुए भरोसा जताया कि केंद्र और राज्यों के सहयोग से वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि साल 2014 में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 70 गीगावाट बिजली बनाई जाती थी, जो अब 203 गीगावाट तक पहुंच गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की नीतियों से इस क्षेत्र में निवेश लगातार बढ़ रहा है और सरकार के आवंटन में भी बढ़ोतरी हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने ऑटोमेटिक रूट से निवेश की अनुमति दी है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले 10 सालों में 165% की बढ़ोतरी हुई है। सबके लिए गर्व की बात है, इंडिया इज द 4th पोजीशन globally in renewable energy installed capacity. We are the 4th rank in the world today, sir. We are the 5th in the world economy, sir, and we are the 4th in the renewable capacity, sir. And we stood 4th in the wind power capacity and 5th in the solar PV capacity. Around 7 lakh crores during the last 10 years have already been invested, sir. 7 lakh crores, sir. इनके कालखंड में पूरा मिला के 3 लाख भी नहीं हुआ था, सर। सिर्फ 10 साल में 7 लाख करोड़ हो गया है। फर्दर टू सेट अप द नॉन फ्यूसल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट 30 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशन है, सर। कैबिनेट हैज अप्रूव्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग इन द ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स विद टोटल आउटले ऑफ 7,453 करोड़ of installation of 1,000 megawatt offshore wind energy projects, 500 each in the coast of Tamil Nadu and Gujarat. इसमें 10 साल तो this in normal course these panels life is more than 25 years. अगर 25 years आप लेते हैं तो भी then 15 years it will be entirely free. ये तो सस्टेनेबल मॉडल है, सर।
मैं जहाँ जहाँ फ्री अनाउंस करके पूरा टफ हो गया इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, इधर उपयोग करो, आपको लाभ होता है। अभी आरपीओ का भी ऑब्लिगेशन, आरपीओ ऑब्लिगेशन, रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन मैंडेटरी है। इसीलिए कैसे फ्री है, कम से कम जो शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से सुन रहे उनको तो समझ आया है, इसे मैं मानता हूँ। They have initiated the process of encouraging the green hydrogen project through you, sir. I appeal to the other states. इसमें तो पॉलिटिक्स करना नहीं है जी। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट आपके यहाँ आएंगे, हमारा सपोर्ट है इसके लिए। तो इसीलिए मैं अपील करता हूँ, आप पॉलिसी बना दीजिए। तो पॉलिसी बनाने के बाद आपके यहाँ प्रोजेक्ट आएंगे, तो ओवरऑल ग्रीन हाइड्रोजन अभी जो बहुत काम इसमें दुनिया में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, और फ्यूचर इज द ग्रीन हाइड्रोजन सर। तो इसीलिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों के जवाब दिए गए। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि साइबर धोखाधड़ी पर सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इस पर निरंतर काम किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं को साइबर धांधली और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई कड़े उपाय किए हैं। वित्तीय लेन देन की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है। उपभोक्ताओं को OTP भेजा जाता है और इसके बिना लेन देन संभव नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि राज्यसभा में देश में 157 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और आवश्यकता होने पर और भी खोले जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा और राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि सरकार की योजना हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की है। एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि हर राज्य में एक एम्स खोलने की योजना है। यदि राज्य में एक और एम्स की आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र सरकार इसके लिए भी तैयार है। PMGKAY के तहत लाभार्थियों से जुड़े सवालों का उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका जवाब दिया। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर सेतु का निर्माण और मंत्रालय से जुड़े सवालों का पत्तन, पोत और परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में 106 और जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। और बात करते हैं फिलहाल शून्यकाल की। शून्यकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए गए और सरकार की ओर से इसके समाधान की भी मांग की गई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर चिंता जताई गई और इसके लिए कानून बनाने की भी मांग की गई। बिहार विशेषकर पटना में चल रहे निजी अस्पतालों में दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की केंद्रीय एजेंसी से समीक्षा कराए जाने की मांग की गई। श्रीलंका नेवी की ओर से तमिलनाडु के मछुआरों को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करने पर चिंता जताई गई। सोशल मीडिया में बढ़ते अश्लील कंटेंट की ओर भी चिंता जताई गई और इसके लिए नियम कड़े करने की मांग की गई। इसके अलावा विभिन्न सदस्यों की ओर से जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर सदन के सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी को जन्मदिन की बधाई दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की ओर से कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद सदन में जरूरी कागजात सभा के पटल पर रखवाए गए। इसमें आयुष मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय शामिल हैं। इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र सदन के पटल पर रखे गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रामवीर श्रेष्ठ को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।